Good morning, class 12C. So, today I will discuss the new topic when new partner does not bring goodwill premium in cash. It means credit goodwill. What is the treatment of credit goodwill? New partners, current account debit to remaining partners, and the amount it will be distributed in sacrificing ratio. Now, the next thing, see the question number 31. A and B were partners. Question number 31. And A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. It means 3 by 5 and 2 by 5. On 1st April 2018, they admitted C as a new partner for 1/4 share. C as a new partner for 1/4 share. C acquires in this question, the important line, C acquires 1/5 of his share. C acquires 1/5 of his share from A. ठीक है, B का नाम नहीं लिया, लेकिन C जब एक्वायर कर रहा है 1/4 में, और यहाँ पे लिखा है C acquires 1/5 of his share. अगर ये लिख देता C acquires 1/4 from A, तो उस केस में हम ये मान लेते पूरा 1/4 अगर यहाँ पे दिया रहता तो 1/4 हम ये मान लेते C ने किससे एक्वायर किया पूरा शेयर? A से. लेकिन यहाँ पे कह रहा है C acquire 1/5 of his share from A. टोटल शेयर C का कितना है? 1/4, जिसमें से A से उसने कितना एक्वायर किया? 1/5. ठीक है, तो टोटल शेयर हम C का मान लेंगे 1. एट द टोटल शेयर ऑफ C इज इक्वल टू 1, जिसमें से 1 में से 1/5 किससे एक्वायर किया? A से. बाकी बचा रहेगा किससे एक्वायर करेगा? B से. 5 1 जा 5, 5 - 1 4/5. यानी शेयर एक्वायर फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम B. ठीक है, यानी 1/5 A से, 4/5 B से एक्वायर किया. यहाँ पे देखो 1/4 1/5 क्वेश्चन में दिया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं था. इस केस में हमने ये मान लिया कि टोटल शेयर ऑफ C इज इक्वल टू 1. तो 1 में से 1/5 A दे रहा है, बाकी कौन देगा? 4/5 B देगा. ठीक है, यानी A से एक्वायर किया 1/5 और B से एक्वायर किया 4/5. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, goodwill of the on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of the last 5 years. ठीक है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट पे हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है. प्रॉफिट्स दिया है 31 मार्च 2014 50,000 प्रॉफिट, 31 मार्च 2015 प्रॉफिट 1,20,000 इंक्लूडिंग गेन. इट मींस गेन मींस abnormal profit, so it will be minus. 31st March 2016 loss 60,000 after charging loss by fire. It means abnormal loss, so it will be plus. In 2016 31st March 2017 loss 1 lakh after charging voluntary retirement. It means abnormal loss, so abnormal loss it will be plus. And last year profit 1,90,000. On 1st April 2018 the firm had assets 7 lakh and external liability 2 lakh. Clear? So next thing, the normal rate of return is capital is 12%, NRR given in the question 12%. C brings 1,25,000 his capital but is unable to bring his share of goodwill in cash. So you are required to calculate C share of goodwill, यानी C की goodwill, pass necessary journal entry and calculate the new profit sharing ratio. तो सबसे पहले हम ये निकाल लें C ने कितना एक्वायर किया A से और B से. ठीक है, सो तरीका क्या है? C acquire from Mr. A, C acquire
फ्रॉम मिस्टर बी। ठीक है, इस केस में थोड़ा सा चेंज था, यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंज। ठीक है, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। सो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, यानी 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 1/4। सी एक्वायर अगेन 4/5 of 1/4. It means 1/20. It means 4/20. और यही 1:4 आपका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो A और B का, यानी C acquires from A 1/5 of 1/4, 1/5 of his share 1/4 and 4/5 of 1/4। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मिल जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो A ने सेक्रीफाइस किया 1/20 और B ने सेक्रीफाइस किया 4/20, तो the sacrificing ratio is to 1:4. Now the next thing, new profit sharing ratio. How to calculate new profit sharing ratio? So यहाँ पे A's new share हमारे पास 3/5 माइनस, यानी A ने 3/5 टोटल, ए का जो न्यू शेयर निकालेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20। ठीक है, सो एलसीएम ले लेना 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 1 11/20। ठीक, सो बी न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का शेयर कैसे निकालोगे, 2/5 माइनस 4/20, एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 21 जा 24, 4/20। और आपको पता है सी ने एक्वायर किया है किससे, ए और बी से, सो सी का रेशियो हो जाएगा 1/4 + 1, यानी 1/20 प्लस 4/20, तो 5/20। ठीक है, या एक तरीका और हो सकता था, 11 + 4 15, 5 ही चाहिए हमको, तो 5/20। तीसरा तरीका ये है कि C का रेशियो 1/4 दिया है, डिनोमिनेटर सेम करना है हमको यहाँ पे, तो 5 से मल्टीपल कर दो, तो 5/20। ठीक है, तीनों तरीका। ठीक है, 11 4 15, लास्ट में 20 आना चाहिए ऐड करने में, तो 11 4 15, 15 and + 5 20। दूसरा तरीका 1/4 × 5 × 5, तो 20 आ जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:4:5, ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग आपको पता है 1:4। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में क्या करनी क्या थी कि गुडविल, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट, गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ AVP मेथड। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ AVP मेथड, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ AVP मेथड पे। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AVP। ठीक है, तो सबसे पहले हमें AVP पता होना चाहिए। ठीक, सेकेंड थिंग capitalized value of AVP, capitalized value of AVP। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तीसरा है आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, यानी गुडविल का कैलकुलेशन करने के समय आपको क्या क्या चाहिए, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AVP इज इक्वल टू AVP into 100 and divided by NR। ठीक है, नेट। नेक्स्ट गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल इज इक्वल टू
कैपिटलाइज यानी सेकेंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवीपी माइनस नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स आपको निकालना कैसे है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो द फर्म हैड एसेट्स 7 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 2,20,000। सो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। यानी जो थर्ड पॉइंट होगा, ये फोर्थ कर लीजिएगा, सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर इसको नहीं सॉल्व करना है तो सीधा आ जाना गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नेट एसेट्स निकालने के लिए जितनी एसेट्स दी उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर देना, ठीक। एवरेज प्रॉफिट नाउ फर्स्ट ईयर, तो सबसे पहले हमको करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इन 2014 50,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 1,20,000 प्रॉफिट plus including gain of 40,000 from sale of fixed assets. Gain of sale of fixed assets means abnormal profit. You know very well abnormal profit. What is the treatment of abnormal profit? It will be loss and it will be minus. Clear? So 1,20,000 minus 40,000, so 80,000 profit. ठीक है। नेक्स्ट में है लॉस है। सो 2016 में लॉस दिया है 60,000, ठीक है। लॉस दिया है 60,000, लॉस है गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000। सो एबनॉर्मल लॉस है, यानी आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर मींस एबनॉर्मल लॉस। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लस, ठीक है। तो 50,000 रुपीज प्लस। लॉस था 60,000, तो 50,000 रिकवर कर दिया, तो अभी भी लॉस कितना है 10,000 रुपीज, तो माइनस 10,000, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्रॉफिट है लॉस है। नेक्स्ट ईयर 17 1 लाख लॉस आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,50,000। सो अगेन इट विल बी एबनॉर्मल लॉस, इट विल बी एक्सपेंसेस पार्ट। सो लॉस दिया है 1 लाख और 1,50,000 रुपीज हमारे पास टोटल लॉस दिया है। नेक्स्ट ईयर में लॉस दिया है 1 लाख, लॉस एज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस है 1,50,000। सो ये एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है 1,50,000, तो 1 लाख इसमें से माइनस कर दीजिएगा, इट मीन्स 50,000 हमारे पास प्लस में आ जाएगा। लॉस जो है वो इस साल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,90,000, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 50,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000 माइनस 10,000। सो आई थिंक 3,60,000 ये आपकी एवीपी निकल गई। और करेक्ट एवीपी 72,000, ठीक है। पहली चीज हो गई एवीपी इसका टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवीपी, और एनआरआर क्वेश्चन में गिवन है 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड फर्स्ट डन, सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवीपी। एवीपी आपके पास 72,000 है इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ठीक है। सो हमारे पास 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, तो 6 लाख रुपीज आएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट सीआई, इट मींस हमें चाहिए क्या, नेट एसेट्स चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया है और कह रहा है द फर्म हैड एसेट्स 7 लाख। सो 7 लाख हमारे पास एसेट्स गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। नेट एसेट्स हमारे पास निकलेगी 7 लाख। थर्ड पॉइंट 7 लाख माइनस 2,20,000, सो आई थिंक 4,80,000। 7 लाख माइनस 2,20,000, so 4,80,000. Now
व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारी क्या निकल गई, नेट एसेट्स, ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,80,000, ये हमारी नेट एसेट्स हो जाएगी। हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एबीवी पता है 6 लाख, लास्ट फॉर्मूला है गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स आपको पता है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख माइनस 4,80,000, तो टोटल आ जाएगा 1,20,000। तो ये आपकी क्या निकल गई, गुडविल निकल गई, ठीक है, गुडविल फर्म की गुडविल है, ठीक, 1,20,000। नाउ नेक्स्ट थिंग, 1,20,000 रुपीज गुडविल। अब जो पार्टनर आ रहा था उसका हिस्सा कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये फर्म की गुडविल थी, ठीक। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या, पार्टनर की गुडविल, यानी सीज गुडविल। सी की गुडविल कैसे निकालोगे, 1,20,000 इंटू 1/4 जो उसका हिस्सा था, यानी 1,20,000, 30,000 सी की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एवीपी निकालना है, करेक्ट एवीपी आपके पास आ गया 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 72,000। फिर हमारे पास चाहिए क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवीपी, एवीपी हमारे पास पता थी 72,000 into 100, एनआरआर हैज गिवन ऑलरेडी गिवन इन द बुक 6 लाख रुपीज। नेट, फिर हमको चाहिएगा नेट एसेट्स चाहिए था, नेट वर्थ इक्वल टू, यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, नेट वर्थ इक्वल टू, यानी नेट एसेट्स जो होती है, एसेट्स माइनस नेट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दोनों बना सकते हैं, ठीक, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक। नेट एसेट्स हमको चाहिए थी कितनी है, 7 लाख गिवन है, 2,20,000 तो 4,80,000, ठीक। फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवीपी माइनस नेट एसेट्स। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवीपी क्वेश्चन में दिया था 6 लाख माइनस नेट एसेट्स 4,80,000 to 1,20,000, ये तो फर्म की गुडविल आ गई। सी की गुडविल कैसे निकालोगे, सी की गुडविल 1/4 है, तो सीज गुडविल 1,20,000 फर्म की टोटल गुडविल इंटू 1/4, यानी 30,000 रुपीज सी की गुडविल हो जाएगी, ठीक है। सो 30,000 सीज गुडविल। नेक्स्ट थिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मतलब है 1:4, क्लियर। सी की गुडविल, सीज गुडविल, टोटल गुडविल कितनी दिया था, टोटल गुडविल आई थिंक 1,20,000 इंटू 1/4, यानी 30,000 सी की गुडविल, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, C brings 1,25,000 his capital, but he is unable to bring his share of goodwill in cash, ठीक है। सो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग दिया था और C और A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कह रहा है C केवल क्या ला रहा है, कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुडविल अमाउंट brought by C, ठीक है, being goodwill amount brought by C, कितना पैसा ला रहा है वो, 1,25,000। नेक्स्ट, he is unable, C capital ला रहा है, being capital amount
brought by C. Next thing, but he is unable to bring his share of goodwill in cash. So new partner current account debit. So C's current account debit and to A's capital and to B's capital. ठीक है, डायरेक्शन राइट कर लीजिएगा. 30,000 इन फ्यूचर उसको देना है और किस रेशियो में देना है 1:4, यानी 6,000 आएगा और 24,000 आएगा आई थिंक. ठीक है, सो 30,000 into 1/4, 30,000 into 1/5, 6,000 and 24,000. Now you have to write fast the question number 31 has done. So next question I will discuss. So you have to write fast the question number 31.